Ram Ram. So we are reading the book On the Way to Krishna. So let us start. We are in chapter number 3, I guess. Seeing Krishna everywhere and always. And then we just saw how the living entities are part and parcel of Krishna, and how Krishna is the seed giving father of all, and how we should accept what is there for us, and not we should understand that what is not for us should be given to Krishna. And then we saw how he is the source of both material and spiritual worlds. And then we saw how the great souls are of divine nature and they are engaged in devotional service. And further, we saw how we can remember Krishna, like we saw that he is a taste of water, light of sun, and the syllable Om of Vedic mantras, and the sound in ether, and ability man. Like this, we saw this, and today we are going to start from here in Western medicine. So, Sami, you can start. 5th August, in Western medicine, sunshine is recommended for all kinds of disease, and according to the Vedas, a diseased man should worship the sun of cure. Similarly, if we associate with Krishna in Krishna consciousness, our maladies are cured. By chanting Hare Krishna, we can associate with Krishna and we can see the water as Krishna, the sun and the moon as Krishna, and we can hear Krishna in sound and taste him in water. Unfortunately, in our present condition, we have forgotten Krishna, but now we have to revive our spiritual life by remembering him. तो प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि अगर आप देखोगे एलोपैथी में या पाश्चात्य इस मेडिसिन में सनशाइन जो होती है वो रिकमेंड किया गया है सबको, अगर आपको कोई बीमारी हो तो ठीक होने के लिए। और वेदास के हिसाब से भी क्या है, अगर आप देखेंगे तो जो आदमी बीमार होता है ना, उसे सूर्य देव की पूजा अर्चना करनी पड़ेगी अगर उसे ठीक होना है तो। उसी तरह अगर कृष्ण को हम कृष्ण भावना में साथ संग करेंगे, यानी पॉजिटिवली, तो क्या होगा, हमारी जीवन की जितनी भी बीमारियां हैं सब ठीक हो जाएगी। और जब हम कृष्ण से कैसे मिल सकते हैं, तो चैंटिंग हरे कृष्ण से हम मिल सकते हैं। हम जब करते हैं इसका मतलब हम उनका डायरेक्ट संग कर रहे हैं। और उसी तरह हमारे जीवन में हम देख सकते हैं कैसे पानी के साथ कृष्ण है, जो रोशनी आ रही है सूर्य और चंद्रमा से वो कृष्ण है। और फिर जब हम कुछ सुनते हैं तो समझ सकते हैं कि ये जो आ रहा है ध्वनि वो भी कृष्ण से है। और इसी तरह हम हर एक दिन हर एक क्षण भगवान को याद कर सकते हैं। अभी दुर्भाग्यवश क्या हुआ है, अभी की स्थिति में हम भगवान कृष्ण को भूल चुके हैं। लेकिन फिर से अभी क्या करना है हमें, कि हमारी जो आध्यात्मिक जीवन है उसको फिर से पुनः जागृत करना है और उनको याद करना है। तो इस तरह हम वापस उनसे जुड़ सकते हैं। हाँ, आगे बढ़िए। This process of Sarvanam Kirtanam, hearing and chanting, was approved by Lord Chaitanya Mahaprabhu. When Lord Chaitanya was speaking with Ramanand Rai, a friend of Lord's and a great devotee, the Lord questioned him about the methods of spiritual realization. Ramanand recommended Varnasram Dharma Sannyas, the renunciation of work Renunciation of and work. so many renunciation of work and so many other methods of Lord Chaitanya said, no, all of these are not so good. Each time Ramanand Rai suggested something, Lord Chaitanya rejected it, requesting a better method for spiritual development. हाँ, बस Finally, बस Ramanand बस Rai एक मिनट, समय एक मिनट। तो ये जो प्रोसेस है ना,
श्रवणम कीर्तनम का हियरिंग एंड चैंटिंग, यानी सुनना और उसके बाद बोलना। अगर हम देखेंगे ना, बच्चे का जो जन्म होता है ना, सबसे पहले वो सुनना सीखता है। और जब किसी की मृत्यु भी होती है तो एंड में हियरिंग जाता है, मतलब कान अगर देखेंगे खुले है हमेशा। तो इसीलिए अगर हम भक्ति में भी आगे बढ़ना चाहते तो सही हमें सुनना चाहिए, और सुनने के बाद हमें क्या करना चाहिए, चैंटिंग अच्छे से करना चाहिए। और ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, ये हमें स्वयं भगवान कृष्ण ने दिया है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब अवतार लेते हैं तभी। और चैतन्य चरितामृत में संवाद आता है चैतन्य महाप्रभु का और रामारायण राय का। तो रामारायण राय कौन है, भगवान के उसमें मित्र है और भगवान के बहुत बड़े भक्त है। तो तभी चैतन्य महाप्रभु अलग अलग तरीके से रामायण राय से पूछते हैं कि आध्यात्मिक हमें अगर उन्नति करनी है, चेतना अगर प्राप्त करनी है, तो कौन से तरीके हैं बताइए। तो रामायण राय ने सबसे पहले बोला कि वर्णाश्रम धर्म को निभाना चाहिए, और वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से हमें अपने अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान को याद करना चाहिए। फिर बोला संन्यास लेना चाहिए, कि सब कार्यों से विरक्त होना चाहिए। और इस तरह उन्होंने अलग अलग तरीके बताए जिससे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ये सब जो भी आपने बताया वो तरीके सही है, लेकिन इतने अच्छे नहीं है। इसका कलयुग में इतने कारागार नहीं है, जल्दी इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए जब जब भी रामारायण ने कुछ ना कुछ सजेस्ट किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट किया और कहा कि इससे कोई अच्छा तरीका बताओ, और अच्छा तरीका बताओ, और अच्छा तरीका बताओ, जिससे क्या होगा, हम आध्यात्मिक जीवन में जल्दी से उन्नति कर सकते हैं। हाँ, आगे पढ़िए अभी। Finally, Ramanand Rai quoted a Vedic aphorism which recommended that one give up all unnecessary endeavor in mental speculation, something Lord Chaitanya rejected it, requesting a better speculation for understanding God, because by speculation it is not possible to arrive at the ultimate truth. Scientists, for instance, may speculate about distant stars and planets, but they can never come to any conclusion without experience. One may go on speculating throughout his life and never reach any conclusion. तो अंत में रामायण राय जो है, वो एक वैदिक अफोरिज्म या वैदिक जो कोट बताते और कहते हैं कि इसमें रिकमेंड किया गया है, उसमें सुझाव दिया गया है कि हमें क्या करना चाहिए। जो व्यर्थ परिश्रम करते हैं अपने मानसिक तरीके से, अलग तरीके से, हम ये बता करने के लिए कि शायद ऐसा होगा या ऐसा होगा, या भगवान ऐसे होंगे या ऐसे होंगे। तो इस तरह जो हम काल्पनिक अलग अलग चीजों के जैसे हम मानसिक तरीके से उसकी सोचते हैं, उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि भगवान को प्राप्त अगर करना है तो स्पेकुलेट नहीं कर सकते, या कुछ हम लोग तुक्का तिक्का नहीं लगा सकते। उनको समझने के लिए जैसे साइंटिस्ट लोग भी बहुत प्रयत्न करते हैं कि ये जो तारा उधर क्या होगा, ये इस ग्रह में क्या होगा। तो बहुत कुछ उनमें तर्क वितर्क लगाते हैं, लेकिन कभी भी उनको सही में पता नहीं चलेगा कि वहां पे क्या है, जब तक वो स्वयं अनुभव नहीं करते। तो कोई कितना भी स्पेकुलेट करे या कितना भी अलग अलग तरीके से आ, वो सोचे, किंतु कभी भी वो वास्तविक जो गंतव्य है उस पे नहीं पहुंच सकता। वो कभी भी जो कोई कंक्लूजन करना है कि इसका जवाब यही होगा, ऐसे वो कभी नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए हमें अपने दिमाग से स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए कोई भी चीज। आगे बढ़िए। It is especially useless to speculate about God. Therefore, Srimad Bhagavatam recommends that all sort of speculation should be given up. It is recommended instead that one become submissive, realizing that not only is he an insignificant creature, but that this earth is only one small point in the great universe. New York City may seem very large, but when one realizes that the Earth is such a small spot and that on the other Earth the United States is just another small spot, and that in New York the individual is only one out of million, then one can understand that he is not, सो then इम्पोर्टेंट he इज नॉट सो इम्पोर्टेंट आफ्टर ऑल।
तो भगवान के बारे में कुछ भी स्पेकुलेट करना या कल्पना करना वो व्यर्थ है कि भगवान ऐसे होंगे, ऐसा होंगे, ये होंगे, ये कल्पना करना व्यर्थ है। इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है वो स्पेशली हमें ये सुझाव दे रहा है कि कोई भी तरह का कल्पना हमें नहीं करना चाहिए, सारी काल्पनिक चीजें छोड़ देनी चाहिए। और उससे वो हमें सुझाव देता है कि किस तरह हम जो है नम्र बने, और इस तरह क्या हम कर सकते हैं कि हमें समझना चाहिए कि हम बहुत ही तुच्छ व्यक्ति या तुच्छ जीव है। हमारा कोई ज्यादा यहाँ पे वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। अगर आप देखेंगे ना, ये पूरा जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी एक डॉट के समान है। एक अगर आप डॉट बनाएंगे ना पूरे ब्रह्मांड में, तो ये पृथ्वी एक डॉट के समान है। उसी तरह ये न्यूयॉर्क सिटी हम जो जाते हैं ना, हमें बहुत बड़ा दिखता होगा, लेकिन जब हम समझते हैं ना अर्थ के सामने, देखिए अर्थ एक अगर डॉट है, तो यूनाइटेड स्टेट भी क्या हो गया, अनदर उससे भी छोटा एक डॉट है, एकदम छोटा डॉट है। तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि सब कुछ बहुत छोटा है। और इसलिए आ, जो भी व्यक्ति रहता है वो ये समझ ले कि वो बहुत ही छोटा सा बारीक डॉट जैसा है, उससे मतलब बहुत कम है। तो इसलिए वो उसकी ज्यादा महत्व नहीं है। अगर जब हम अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व समझ देते हैं ना, तभी ये समस्या होती है। बट अगर हम समझेंगे कि हम जो है एक साधारण व्यक्ति हैं, तो ये हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसलिए हमें अपने आप को ज्यादा बड़ा या ये नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत बड़े हैं। हमें अपना समझना चाहिए कि हम बहुत अणु हैं, बहुत छोटे हैं। आगे बढ़िए। Realizing our insignificance in the face of universe and God, we should not be artificially puffed up, but should be submissive. We should be very careful not to fall prey to the frog philosophy. Once there was a frog in a well, and upon being informed of the existence of the Atlantic Ocean by a friend, he asked the friend, "Oh, what is this Atlantic Ocean?" "It is a vast body of water," his friend replied. "How vast? Is it double the size of this well?" "Oh no, much, much larger," his friend replied. "How much larger?" "10 times the size." In this way, the frog went on calculating. But what is the possibility of his ever understanding the depth and far reaches of the great ocean? Our faculties, experience, and power of speculation are always limited. तो हमें समझना चाहिए कि हम जो है वो भगवान को समझने में बहुत ज्यादा हमारी बुद्धि नहीं चलेगी। और इसलिए हमें खुद को गर्व नहीं देना करना चाहिए, और बहुत ही हमें हम्बल रहना चाहिए, सबमिसिव रहना चाहिए। क्योंकि हम कितना भी चाहे तो भी हम समझ नहीं सकते। इस तरह इसमें उदाहरण देते मेंढक का। तो एक बार एक मेंढक रहता है कुएं में, और वहां पे एक दूसरा मेंढक आता है, और वो कहता है पहले मेंढक को कि आपको पता है कि यहाँ पे जो समुद्र है वो कितना बड़ा है। तो उसका जो पहला दोस्त जिसने कभी समुद्र देखा नहीं था, हमेशा कुएं में रहता था, उसका जीवन ही पूरा कुएं में गया होगा, कितना बड़ा होगा ये पूरा महासागर। तो उसका वो बोले कि कितना बड़ा होगा। तो उसके दोस्त ने, नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा है। मतलब और कितना बड़ा होगा, क्या ये डबल होगा, इससे जो ये कुआ है उससे डबल है। बोले नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा है। तो बोले कितना बड़ा होगा, 10 10 गुना बड़ा होगा। तो इस तरह वो जो मेंढक है वो बढ़ाता गया नंबर, लेकिन उसको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि समुद्र कितना गहरा है और कितना बड़ा है। इसलिए हमारे पास जो भी इंद्रिय दी है हमने, भगवान ने हमें जो बुद्धि दी है, मन दिया है, अहंकार दिया है, और सब कुछ दिया है ना, उसकी शक्तियां बहुत कम है कि वो समझ सके कि भगवान कितने महान हैं और कितने बड़े हैं। और इसलिए हर कोई क्या कहता है, वो मेंढक के जैसा वो सोचता है, और उसके जैसा वो अलग अलग चीज निकालता है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। बट इस तरह हम भगवान कभी समझ नहीं सकते। हाँ, आगे पढ़िए। We can
only give rise to such frog philosophy. Therefore, Srimad Bhagavatam recommend that we give up the method of speculation as a waste of time in trying to understand the Supreme. After giving up speculation, what should we do? Bhagavatam recommends that we become submissive and hear the message of God submissively. This message may be found also in the Bhagavad Gita and other Vedic literature, in the Bible or the Quran, in any bona fide scripture, or it may be heard from the realized soul. The main point is that one should not speculate but should simply hear about God. What will be the result of such hearing, regardless of what one is, whether he be a poor or a rich man, an American, European, or Indian, a Brahman, Shudra, or whatever, if one but hears the transcendental word of God, the Lord, who can never be conquered by any power or force, will be conquered by love. Arjun बस was a बस एक friend मिनट, of बस Krishna. बस रुको। इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ मत पढ़ो, बिकॉज क्या होगा वो पूरा लोग भी ये हो जाएंगे। 4-5 लाइन बस हो गया, उतना एक्सप्लेन करेंगे फिर आगे जाएंगे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भागवतम जो है ना, वो सबसे ये कह रहा है, रिकमेंड कर रहा है या सुझाव दे रहा है कि हमें इस तरह क्या करना चाहिए, कल्पना नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा समय बर्बाद होगा और हम भगवान को समझ नहीं सकते। तो ऐसी सब मनगढ़ंत कल्पना छोड़ के हमें क्या करना चाहिए। भागवतम कहता है कि हमें नम्र बन के भगवान का जो संदेश है उसे सुनना चाहिए। जिस तरह हम अभी किताब पढ़ रहे हैं ना, हम प्रभुपाद ने जो लिखी हुई किताब पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद वही संदेश दे रहे हैं जो भगवान ने दिया और इस तरह हम सुन रहे हैं। तो इस तरह हमें रोज आके ये संदेश सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ये संदेश जो है भगवद गीता में पाया जाता है और अलग अलग बाकी वैदिक ग्रंथों में भी पाया जाता है, और फिर बाइबल और कुरान में भी पाया जाता है। तो जो भी एकदम बोनाफाइड स्क्रिप्चर है, जो भी ग्रंथ जो जिसपे स्वीकृति है गुरु साधु और शास्त्र की, ये तीन जब स्वीकृति होती है तो उसको हम पढ़ सकते हैं। और या तो हमें ऐसे महाभागवत से पढ़ना चाहिए जिसने ये सारा ज्ञान जो है पढ़ा है और उसको उसने अपने जीवन में उतारा है, और वो ज्ञान का विज्ञान हो चुका है अभी, मतलब जिसको भी आत्म साक्षात्कार हो चुका है। तो या तो हम किताब पढ़े या तो हम ऐसे व्यक्ति सुने, दोनों का लाभ वही होगा, बिकॉज ये व्यक्ति ने भी उसी किताब से पढ़ के अपने जीवन में उतारा होगा। तो हमें मुख्य मुद्दा क्या है कि हमें कल्पना नहीं करनी चाहिए, लेकिन भगवान के बारे में ग्रंथों से, किसी के वाणी से हमें सुनना चाहिए। और अगर कोई ऐसा सुनता है तो क्या होगा, चाहे वो कहाँ का भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, अमीर हो गरीब हो, अमेरिकन हो यूरोपियन हो, इंडियन हो ब्राह्मण हो शूद्र कोई भी हो, लेकिन उसे कभी भी आ, कोई और आ, उससे उसके ऊपर हावी नहीं होगा। लेकिन वो प्रेम से भगवान कृष्ण जो है उसकी सेवा में लग जाएगा और भगवान कृष्ण उनको प्रेम से आ, समर्पण करने के लिए मजबूर करेंगे। देखो हम लोग जब ये शब्द सुनते हैं सरेंडर करके, तो बहुत बार बहुत लोगों को डर होता है कि कोई बंदूक दिखाएगा और इस तरह जबरदस्ती हम पे बोलेगा कि आप अभी झुक जाओ और सरेंडर करो। लेकिन एक्चुअली अगर आप भगवान को देखेंगे ना, तो भगवान हमसे भी सरेंडर चाहते हैं, लेकिन इस तरह नहीं, प्रेम से, हम हमारी स्व इच्छा से भगवान को अपने आप को दे, ये भगवान की इच्छा है। और इसलिए अगर आप देखोगे भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, और इसलिए भगवान चाहते हैं हम स्व इच्छा से उनकी शरण लें ताकि हम हमेशा के लिए खुश रह सके। तो इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक में जो संबंध है उसमें बहुत फर्क है। भौतिक जगत में अगर कोई मालिक होगा ना, तो जो उसके पास काम करता है बहुत डरता है कि ये मुझे कितना परेशान करेगा ये। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो जो सेवक होता है, दास होता है ना, उसको भी उतना ही आनंद मिलता है जितना मालिक को मिलता है, कभी कभी उससे ज्यादा मिलता है। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम उनके प्रेम से वशीभूत हो जाए और उनके प्रेम हमें जीत ले, और कोई हमें जीत ना सकता है। हाँ आगे बढ़िए अभी। हरे कृष्णा।
Arjun was Arjun was a friend of Krishna, but Krishna, although the supreme god, had become Arjun's chariot driver, a menial servant. Arjun loved Krishna, and Krishna reciprocated his love in this way. Similarly, when Krishna was child, he playfully took the shoes of his father Nanda Maharaj, and put them on his head. तो अगर आप देखेंगे ना, युद्ध में देखा, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो अर्जुन जो थे वो कृष्ण के मित्र थे। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, मित्र के इसमें भी वो भगवान है स्वयं, लेकिन उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। एक्चुअली अगर आप सारथी को देखो ना, तो इसका आपको समझ में आएगा सारथी का क्या होता है। देखो, जब रणभूमि में लड़ते हैं ना, तो किसी की आवाज नहीं आती। मतलब अगर आप देखोगे बहुत चिल्लाते हैं, बहुत है, तो आवाज नहीं आती। अभी नीचे ड्राइवर बैठा है, समझो, अपना कार ऐसा नहीं है, कार आगे रहता है पीछे, ड्राइवर एकदम नीचे बैठा है और ऊपर खड़े है वो। तो अभी उनको पता ना है कि राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, तो क्योंकि सारथी को उस तरह चलना है, तो कैसे पता करेंगे कैसे जाना है। तो जो सारथी रहते हैं ना, उसको लात मारते हैं। अगर राइट में लात मार तो राइट में जाना है, लेफ्ट में लात मार तो लेफ्ट में जाना है, बीच में लात मार सीधा जाना है। तो इस तरह कृष्ण जो है ना, वो अर्जुन की लात खा रहे थे, और इसलिए ये इतना आसान नहीं किसी के सारथी बनना। लेकिन भगवान होके भी भगवान ने ये सेवा स्वीकार की, अर्जुन का सारथी बनना, और उनके लात खा रहे थे। तो इस तरह अगर आप देखेंगे कि ये जो है अर्जुन, वो भगवान जो है उनके बस में आ गए, और भगवान जो है प्रेम के वश में आके इस तरह उनसे आदान प्रदान करते हैं। उस तरह आप देखते हैं, जब कृष्ण बचपन में बच्चे रहते हैं तो क्या करते हैं, अपने पिताजी का चप्पल अपने सर पे रखता है। अगर आप देखोगे नॉर्मली, तो किसी का चप्पल उठाना ये कोई शोभनीय बात नहीं है। मतलब कोई भी किसी का चप्पल नहीं उठाते, किसी सामने झुकना, किसी का नमन करना, किसको, ये हम किसके साथ नहीं करते। हमारे गुरु होंगे या माता पिता होंगे या बहुत वरिष्ठ होंगे कोई, तो ही करते हैं। किंतु यहाँ पे कृष्ण भगवान होके भी अपने माता पिता का या मोस्टली पिता का चप्पल उठाते हैं, तो और अपने सर पे रखते हैं। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि कैसे भगवान आदान प्रदान करते हैं। और इसलिए भगवान के प्रेम के वश में होकर भगवान की सेवा करना, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, और सबसे उत्तम लक्ष्य होना चाहिए, और इसी में हमें आनंद की प्राप्ति होगी। हाँ, आगे पढ़िए अभी। People may try very hard to become one with God, but actually we can surpass that. We can become Father of God. Of course, God is the Father of all creature, and He has no Father Himself, but He accepts His devotees, His love as Father. हाँ, आगे भी पढ़ लो 2 लाइन। कृष्णा एग्रीज टू बी कॉन्कर्ड। Krishna agrees to be conquered by his devotee out of love. All one has to do is hear the message of the Lord very carefully. In the seventh बस chapter बस of बस Bhagavad बस Gita, बस 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 बस। तो एक्चुअली अगर देखेंगे ना, भगवता में कहते हैं भगवान कि हम बीजम प्रतावदा, यानी भगवान जो कहते हैं कि मेरे से सब आए हैं। तो हम लोग बहुत बार क्या सोचते हैं कि हम भगवान जैसे बनेंगे, भगवान जैसा बनेंगे। मतलब बहुत 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 लोग इस दुनिया में हैं जो भगवान बनना चाहते हैं, और बहुत लोग की इच्छा है कि भगवान में लीन हो जाएंगे। ये सब बहुत लोग को लगता है ऐसा। लेकिन हम लोग कभी भी भगवान नहीं बन सकते, हम उस लेवल में कभी नहीं पहुंच सकते। किंतु हम भगवान से आदान प्रदान कर सकते हैं, और भगवान अपनी इच्छा से कभी कभी किसी जीव को अपने माता पिता के लिए जैसे स्वीकार करते हैं। तो हम कभी 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 यशोदा के भाव में आके उनकी सेवा कर सकते हैं, माता के रूप में, कभी पिता के रूप में। ये संभव है। अगर हम देखेंगे तत्व के हिसाब से, तो भगवान जो है वो हमसे बड़े हैं। लेकिन लीला के हिसाब से या आदान प्रदान के हिसाब से कभी कभी यशोदा माई जो कृष्ण को बांध देती है। अगर आप देखोगे नॉर्मल जीवन में संभव नहीं है ये। कोई अगर देखो कम से बड़ा बड़ा अगर आया है, या कोई दूसरा भी बड़े बड़े राक्षस है, तो भगवान को नहीं मान सकते। लेकिन भगवान अपनी इच्छा से
किसी भक्त के प्रेम के वश में आके बंध जाते हैं। और इसलिए अगर देखेंगे तो यशोदा माई उनको बांधती है। और इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान के जो संदेश है, जो गीता में है और अलग जगह पे दिए सब, उसे बहुत ध्यान से हमें सुनना है। और इस तरह हमें भगवान की प्रेममय सेवा करनी है कि भगवान अपनी इच्छा से हमारे प्रेम के बंधन में बंध जाए। हाँ, अभी आगे पढ़िए। In the seventh chapter of Bhagavad Gita, Shri Krishna gave additionally ways in which he can be perceived in every step of life. परसिव्ड। तो भगवद गीता के जो 7वें अध्याय है ना, उसमें भगवान कहते हैं कि किस तरह हम उसको पहचान सकते हैं, उनका संबंध को एहसास कर सकते हैं हमारे हर एक कदम पे। पुण्यो गंधा पृथ्व्यं च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। I am the original fragrance of the earth. I am the heat in fire. I am the life of all that lives, and I am the penances of all aesthetics. तो भगवान कहते हैं कि जो पृथ्वी है उसका सुगंध जो है ना वो मुझसे आता है, मैं उस ओरिजिनल वहां से सुगंध हूँ। और जो अग्नि है, अग्नि उसमें जो हीट होता है ना, हीट गर्मी, वो मेरे से आई है। और उसके बाद में जो भी जीव है उसका जीवन मुझसे आया है। और जितने भी तपस्वी है उनकी तपस्या जो है वो मुझसे आई है, मैं उसका पति हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति को तपस्या भी करनी हो तो भगवान की इच्छा के बिना तपस्या भी नहीं कर सकता। हम जीवित भी रह नहीं सकते भगवान की इच्छा बगैर। और जो अग्नि है वो आग या जो हीट है, हीट यानी गर्मी प्रदान करने के लिए भी सक्षम नहीं है। और पृथ्वी से जो गंध आती है वो भी भगवान की कृपा से आती है। तो इस तरह हर एक चीज में अगर हम भगवान को देखना चाहे तो देख सकते हैं। और ये ही भगवान हमें यहाँ बताते। आई थिंक आगे का हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा है। अभी द वर्ड पुण्योगंधा से हम आगे से पढ़ेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल वापस इसी समय मिलेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, डाउट है तो पूछ सकते हैं। 3-4 मिनट है हमारे पास, नहीं तो फिर हम आज के इसको यहाँ पे विराम देंगे। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।